John Kidd died at the age of 25. When did John Kidd die? सन 1821 में जॉन किड डाइड ऑफ मतलब क्या कंसम्पशन. जॉन किड वॉज ए रोमांटिक पोइट. नहीं. जॉन किड वॉज एज ए मतलब कि हेलेनिस्टिक पोइट हु इज नोन फॉर ए हेलेनिस्टिक spirit in his poetry. Keat. What is a Hellenism that we find in a Keats poetry? Keats' description of a Greek art and culture है. The old Keats are irregular. The year was the cumulative point of the Keat career. सन 1819 का है. Who wrote a famous pastoral elegy मतलब कि Adonis on the death of Keat? Shelley. Elegy Adonis is a threnody written to mourn the death of John Keat. Which volume of a poetry by Keats continue the poem Hyperion? Third volume है. Shelley was so deeply inspired by one of a Keat poem that he wrote to Keats मतलब कि asking him to visit Pisa where he was staying. Hyperion. With which of the following poet do we associate the pictorial quality of a poetry? Keats. What is John Keats' first work? On Looking at a Champion. Homer. Which is the last work of a John Keats? Bright Star. Keats dropped the first stanza of one of his ode. It was from to Apollo, to who Keats advised in his letter, "You, I am sure, will forgive me for sincerely remarking that you might cube your magnanimity and be more of an artist and loud every rift of your subject with our सैली ने कहा है जॉन किट के लिए. Who wrote in his letter to John Hamilton Reynolds, "We hate poetry that has a perpetual design upon us." John Keats है. Poetry should surprise by a fine है मतलब कि exercise, and if poetry should come not as naturally as the lips to a tree, it had better not come at all. ये जॉन कीट ने कहा था. A poet is the most मतलब कि unpoeticals of anything in a मतलब कि existence, because he has no मतलब कि identity. He is a continuously in for and feeling some other body. यह लाइन जॉन कीट ने कहा है. शेक्सपियर एंड द पैराडाइज लॉस्ट एवरी डे बिकम ग्रेटर वंडर टू मी. आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक अ लवर. ये जॉन कीट ने कहा था. इफ आई शुड डाई आई हैव लेफ्ट नो इमॉर्टल वर्क बिहाइंड मी, नथिंग टू मेक माई फ्रेंड प्राउड ऑफ माई मेमोरी, बट आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, एंड इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव मेक माई सेल्फ रिमेंबर. कीट्स ने अपने लेटर टू फैनी में लिखा था. Who write in a letter to his brother George and Tom Keat on 21 सितंबर सन 1817 में शेक्सपियर proposed so enormously, I meant negative capability, that is when man is capable of being in uncertainties, mysterious doubt without any travels reaching after fact and reason. ये जॉन कीट ने कहा था. द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज ए गिवन जॉन कीट, हु रोट इन ए लेटर ऑफ J.H. रेनॉल्ड, एडमायर मी आई एम अ वायलट, डेट अपॉन मी आई एम ए प्रिमरोज. ये जॉन कीट ने कहा था. आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर आर एट माई फील्ड. ये लाइन जॉन कीट ने ओड टू नाइटिंगेल से लिखी. जॉन कीट के ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है. Beloved upon my fair love ripening breast, to feel for ever it soft fall I shall. यह लाइन जॉन कीट की पोएम ब्राइट स्टार से ली गई. हियर्ड मेलोडाइज आर ए स्वीट
बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर्स। यह लाइन जॉन कीट की पोएम ओडानी ग्रीसियन अन्न से लिखी। ब्यूटी इज ए ट्रूथ इज ए ब्यूटी दैट इज ऑल टू नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो। यह लाइन जॉन कीट की पोएम ओडानी ग्रीसियन अन्न से ली गई है। डू आई वेक और स्लीप। यह लाइन जॉन कीट की पोएम ओड टू नाइटिंगेल से ली गई है। माई हार्ट एचेस एंड ए डाउजी नंबर पेन। ये जॉन कीट की है। ये जॉन कीट ने कहा है। इट इज़ द एटर्नल लॉ दैट फास्ट इन ए ब्यूटी शुड बी फास्ट इन ए माइट। यह लाइन जॉन कीट की पोएम हाइपेरियन ए विजन से ली गई। ए थिंक ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यह लाइन जॉन कीट की पोएम एंडीमियन से ली गई है। A long romance entitled Endymion is written by John Keats. Endymion by John Keats is the story of a young shepherd loved by the moon goddess. Keats took the story from Greek mythology, which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished. यह लाइन जॉन कीट के एंडीमियन से ली गई है। कीट अ वर्क वर क्रिटिसाइज्ड इन द मैगजीन। यह लाइन जॉन कीट की ब्लैकवुड मैगजीन एंड ए क्वार्टरली रिव्यू हु सेड कीट हैड ए फ्लिंट एंड ए आयरन। यह मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है जॉन कीट को। ही इज विथ शेक्सपियर। यह जॉन कीट को मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। कीट वॉज अ ग्रीक। ये जॉन कीट को सैली ने कहा। हु कॉल कीट वन ऑफ द इनहेरिटर ऑफ ए अनफुलफिल्ड रिनॉन। ये जॉन कीट को सैली ने कहा था। कीट एज ए पोइट इज एविडेंटली एंड इंचेंटली सेस्नुअस। यह लाइन जॉन कीट को मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा। कीट पोएम लावेला डेम्सम्स मर्सी is a ballad. I think I shall be among the English poet after my death. यह जॉन कीट ने हिज ब्रदर जॉर्ज में लिखा है। एफ स्कॉट फित्जले was a great admirer of the poetry of John Keats, so much that he named one of his novels Tender in the Night with a line from one of a poem Keats. यह लाइन जॉन कीट की ओड टू ए नाइटिंगेल्स के लिए कहा। विच सोनेट फ्रॉम ए कीट मतलब कि अडॉप्टेड इटालियन फ्रॉम में। कीट डाइड इन ए रोम इन द आर्म ऑफ ए फ्रेंड 7 विच ओड ऑफ ए कीट इज इनकम्प्लीट। ओड टू मारिया। हेयर लाइस वन हुज नेम वॉज राइट इन ए वाटर। ये जॉन कीट के टॉम्ब पे लिखा हुआ है। द अदर टाइटल ऑफ ए कीट्स इज़ाबेला इज ए पोस्ट ऑफ ए बेसिल। द स्टोरी ऑफ इज़ाबेला इज ए टेकन फ्रॉम बोकासियो के डिकेनमियन से है। कीट्स लामिया इज ए बेस्ड ऑन एंटोनी ऑफ ए मेलंकली। विच ऑफ दीज इज नॉट ए वर्क ऑफ ए जॉन कीट का ओड टू ऑटोमन भी, इज़ाबेला भी, द पॉट ऑफ ए बेसिल भी है। टू नाइट नहीं है जॉन कीट का। विच ऑफ द वर्क जॉन कीट रेफर्ड टू एज ए ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये जॉन कीट के एंडीमियन पोएम में। जॉन विल्सन कुकर रॉट ए हार्श रिव्यू इन द अप्रैल सन 1818 में एडिशन ऑफ द क्वार्टरली रिव्यू इन क्रिटिसाइज जॉन कीट के एंडीमियन में है। जॉन गिब्सन लॉकहार्ट राइट इन ए ब्लैकवुड मैगजीन डिस्क्राइबिंग अ वर्क ऑफ ए कीट एज ए imperturbable drivelling idiotic with bitter sarcasm. Lockhart advised it is a better and a wiser things to be a starved apothecary than a starved poet. So back to the shop, my John, back to a plaster pills and ornament boxer. यह जॉन किट के एंडीमियन पोएम से। विच मैगजीन contained the defamatory term the Cockney School for a Hunt and the
His circle, which included both Hazlitt and Keek, Lockhart की Blackwood magazine में. To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of English Poetry, who is a Keatsky. The criticise opened one of the Keats' work, Sons of his Pettis discuss and Don John style is a mingling up a sentiment and a sneering, concluding was a poem unfit for a lady. St. Agnes है, who was a Endymion, the brain-sick shepherd prince of a empty Latmus है. Keat Endymion is a dedicated to Thomas Chatterton है. While reading Endymion was an influence can we see on a Keat. Spencer has Shelley dismissed Keat poetry by saying, in spite of a transcendental genius, Keat never was nor ever will be a popular poet. Shelley disliked Keat poetry because his poetry was devoid of a revolutionary spirit. James Henry Lehant, who wrote a poem about Ben Adam, was a first no-influence critic, no recognized work of Keats, in which poem Keats uses the star imaginary bright star in ode to Psyche. Psyche is loved by Eros love है. Lets the winged fancy room pleases never is मतलब कि at home. जॉन किट की पोएम ओड टू फैंसी से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर wrote a work named Endymion is a pre-Shakespearean period. John Lilly, who wrote a long articles entitled The First Looking into Champlain Humor. Marlowe है, who wrote to a note to Shelley, my imagination is a monastery and I am it monk. यह लाइन जॉन कीट ने कहा है. Who described the letter of John Keats as a certainly the most notable and most important ever written by any English poet. T.S. Eliot ने कहा था जॉन कीट के लेटर में, डिस्क्राइब की जॉन कीट के लेटर में बताया है. Keats might have become a critic as he might have become almost anything good, but I do not think he was one. ये जॉन कीट के लिए प्रोफेसर शेंटबरी ने कहा था. ओ फॉर ए लाइफ ऑफ ए सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट. ये जॉन कीट ने कहा पोइट्री शुड सरप्राइज बाय ए फाइन एक्सरसाइज एंड इफ पोइट्री शुड कम नॉट एज ए नेचुरली एज द लिप्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल. यह लाइन जॉन कीट के लिए जॉन कीट ने कहा है. Keats believed in a fine exercise in poetry and advised the other poet in a letter. You, I am sure, will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with one. यह लाइन जॉन कीट के लिए शैली ने कहा था. He had poetry that has a परपेबल डिज़ाइन अपॉन अस. यह लाइन जॉन कीट के लिए जॉन कीट के लेटर में यह लाइन जॉन हैमिल्टन ने लिखा था. एडमायर मी आई एम ए वायलेट दूत अपॉन मी आई एम ए प्रिमरोज. यह लाइन जॉन कीट ने कहा है. इन द लेटर ऑफ दिसंबर 21 सन 1817 में ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस कीट हैज़ यूज्ड अ टर्म नेम निगेटिव कैपेबिलिटी. दिस इज द क्वालिटी दैट अ मैन प्रपोज when he is capable of bring in uncertain mysterious doubt without any irritables reaching after fact and reason. What is the term of a quality? Negative capability. Keats is inherently and abundantly sensuous. यह लाइन मैथ्यू नॉल्ड ने कहा था कीट्स के लिए. I cannot see what flower are at my feet. यह लाइन जॉन कीट की पोएम ऑड टू नॉटिंगेल से ली गई है. Pillowed upon my fair love's
ripening breast to feel forever it soft fall। यह लाइन जॉन किट की पोयम ब्राइट स्टार से ली गई। हेयर मेलोडाइज आर ए स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर ए स्वीटर्स। यह लाइन जॉन किट की पोयम ओड ऑन ए ग्रीसियन अन्न से ली गई है। ब्यूटी इज ए ट्रुथ, ट्रुथ इज ए ब्यूटी, डेट इज ए ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो। यह लाइन जॉन किट की पोएम ओड ऑन ए ग्रीसियन अन्न से ली गई। एंड कैन आई इवर बिट दीज जॉय फेयरवेल, यस आई मस्ट पास देम फॉर अ नोबर लाइफ वेयर आई मे फाइंड द एगोनस द स्टाइफ ऑफ ह्यूमन हार्ट। यह लाइन जॉन किट की पोएम स्लीप एंड पोइट्री से ली गई है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर आई और न्यू लव फाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। यह लाइन जॉन किट के लिए ओड टू नॉट अंकल से ली गई। फॉर इट द एटर्नल फ्लॉ दैट फर्स्ट इन ए ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन ए माइट। यह लाइन जॉन किट की पोएम हाइपेरियन ए विजन से ली गई। एंड द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज सी इज ए फ्रेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ। यह लाइन जॉन किट की पोएम ओड टू नाटंगल से ली गई। दिस वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट आल्सो द मोस्ट परफेक्ट एंड द रोमांटिक कीट वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट आल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिक। यह कमेंट किसने किया है? ये W.G. लॉन्ग ने। डू नॉट ऑल चार्म फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ ए कोल्ड फिलॉसफी। यह लाइन जॉन किट की पोएम लामिया से ली गई है। लामिया से इन विच मैगजीन डिड द क्रिटिक अटैक कीट वर्क एंड डिमियन ब्लैकवुड एंड द क्वार्टरली रिव्यू कीट एड ए फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। यह लाइन जॉन किट के लिए कमेंट किया मैथ्यू नॉल्ड ने। सैली सेंट एंड इन्विटेशन टू कीट टू कम टू पीसा इन ऑर्डर टू लिव विथ हिम बट कीट यह लाइन डिक्लाइंड द ऑफर। कीट नेवर अपोर्ड शैली रिवॉल्ट अगेंस्ट सोसाइटी है। द थीम ऑफ ए हाइपेरियन इज द ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन बाय द यंग सम गॉड अपोलो है। द इमेजिनेशन में बी ए लाइकनेस टू अटेम्प्ट ड्रीम ही वॉक एंड फाउंड इट ट्रू। ये जॉन कीट ने कहा। कीट वॉज वन ऑफ द इनहेबिटेशन ऑफ ए अनफुलफिल्ड रीनो। ये शैली ने कहा था। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ए ब्यूटी इन ए ऑल थिंग्स। ये कीट्स ने लेटर में दिया है। फॉर एवर विथ दाउ लव सी बी फेयर। यह लाइन जॉन किट की पोएम ओड ऑन ए ग्रीसियन अन्न से लेके। लॉरेंजो इज इजाबेला का लवर है। वन ऑफ द वर्क कीट इज ए बेस्ड ऑन बर्टन द एटोनमी ऑफ ए मेलंकली फाइंड इट आउट लामिया है। हिज हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन बट इट वॉज स्टार्वड दिस इज ए सैड। यह जॉन कीट ने कहा था। आई थिंक आई शेल बी एमंग द कीट पोइट के आफ्टर द डेथ। जॉन कीट ने कहा। ही इज विथ शेक्सपियर। मैथ्यू नॉल्ड ने कहा था जॉन कीट को। सैली ट्रेवल्ड बाय हेवन टू अर्थ वाइल कीट फ्रॉम। यह लाइन अर्थ टू हेवन को कहा। इट इज ए नो स्मॉल थिंग्स टू हैव शो लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ए ब्यूटी एज टू ए परस्यू द नेसेसरी डिक्लाइनेशन of a beauty with truth and both with joy. Keat was a great spirit and count for a more than a many even of his admire suppose because the just high perfection made itself clear to him. यह लाइन जॉन किट के लिए मैथ्यू नॉल्ड ने कहा था। इट वन ऑफ इज लास्ट लेटर अ poet if he should die I have left no immortal work behind me, nothing to make my friend proud of my memory, but I have loved the principle of a beauty in all things, and if I had time I would have made myself remembered। यह लाइन जॉन कीट ने कहा था। कीट पोइट्री वॉज नॉट इमिटेड इन डीड ऑफ शेक्सपियर बट शेक्सपियरियन। यह कमेंट मैथ्यू नॉल्ड ने जॉन कीट के लिए क्या था। पोइट इज द मोस्ट अनपोइटिकल थिंग्स इन एक्सिस्टेंस।
He has no identify. He is a continue in for and fitting some other body. यह लाइन जॉन कीट ने कहा है. I can scarcely propose what I but dimly pursue, and yet I think I pursue it. The statement of a Keat so is a mental state. यह लाइन जॉन कीट के एंटीमियन पोएम से है. आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक ए लवर. यह लाइन जॉन कीट ने कहा है. होम डज कीट एडवाइस टू लॉर्ड एवरी रिफ्ट विथ मतलब क्या. और यह लाइन सैली ने कहा था. आ पोएम इज ए फेवरिस्ट अटेम्प्ट रेदर देन अ डीड accomplished. यह लाइन जॉन कीट ने कहा था. आई थिंक पोइट्री शुड सरप्राइज अस बाई अ फाइन एक्सेस. दिस पोएम विल बी ए टेस्ट एंड ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड chiefly of my invitation, which is a rare things and it by which I must make 4,000 line of one bare invitation and filled them with poetry. यह लाइन जॉन कीट की पोएम एंडीमियन से ली गई है. हाइपेरियन वॉज pioneered to be a blank verse epic in 10 book. Only 2 book and a part of the third were completed, yet in a remained Keats' greatest achievement. The poem was inspired by a book of Milton, which book is This Paradise Lost. Keats used the sonnet from which one Italian from me. O poesy, for thee I hold my pen, that am not yet a glorious denizen of thy vid heaven. यह लाइन जॉन कीट की पोएम स्लीप एंड पोइट्री से ली गई. स्टॉप एंड कंसाइडर लाइफ अ बेट अ डे. यह लाइन जॉन कीट की पोएम स्लीप एंड पोइट्री से ली गई है. कीट रोट ए बैलड इन सन 1819 टू कन्क्यूर लव एंड डेथ. इट वॉज ए एलिगोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ इज ए agonist struggle. Find out the ballad La Bella Dempsey's Mercy, which poem was written soon after the death of his brother Tom. Ode to Nightingales. One of a Keat friend died in his arm. Salmon, find him out. Severin, which ode in incomplete. Ode to Maya, which sonnet is the last of a Keat sonnet. Bright star who call ode to autumn, perhaps the nearest to perfection. Sonborn, airline one whose name is written in a water. जॉन कीट के उस पे जॉन कीट के एपिटाफ पे है. आई डिसलाइक मैनकाइंड जनरली, एंड इफ देयर was a person born without the faculty of a open, I am he. John Keats ने कहा. It is a long narrative poem in 4 volume. In deals with the Greek myth of a love of the moon, golden goddess Cynthia for a Greek youth. Who is the youth? Name of this youth is also the title of the poem Endymion. I think of a beauty is a joy forever. ये जॉन कीट की पोएम एंडीमियन से. द अदर टाइटल ऑफ द पोएम इजाबेला, द पॉट ऑफ ए बेसिल सन 1818 में. द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम बोकासियो. इट इज ए स्टोरी ऑफ ए मर्डर ऑफ ए लेडी लॉवेल who is murdered by the brother of his beloved Isabella. The poem is in Spenserian stanza and present the story of a elopement of a Porphyria and Madeline. यह लाइन जॉन कीट की पोएम यू ऑफ एस.टी. एजनस से है. लामिया सन 1819 में प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ ए youth नेम्ड लिसिसियस लव फॉर ए लामिया. लामिया इज ए सर्पेंट वुमन. Otho the Great is a Keat drama. Their lips touch not, but had not bad end. यह लाइन जॉन कीट की पोएम ओड टू साइकी से ली गई. ब्यूटी दैट मस्ट बी एंड जॉय हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स बिडिंग एंड. यह लाइन जॉन कीट की पोएम ओड टू मेलंकली से है. कीट्स वॉज ए ग्रीक
यह किसने कहा है? यह जॉन कीट के लिए सैली ने कहा था। वेयर वर्डवर्थ मतलब कि स्पिरिचुअलाइज एंड सैली और इंटरलाइज नेचर कीट्स इज ए कंटेंट टू एक्सप्रेस अरे दाऊ द सन्स। यह कमेंट जॉन कीट के लिए कॉम्पटन रिकट ने किया। लामिया इज ए बेस्ड ऑन ए बर्थन द ऑटोनॉमी ऑफ ए मेलंकली है। दाउ वॉस्ट नॉट बॉर्न फॉर ए दैट इमॉर्टल बर्ड नो हंग्री जनरेशन ट्रेड द डाउन वेयर। ये लाइन जॉन कीट की पोएम ओड टू नाइटिंगेल से है। फैनी ब्राउनी वाज the first kit, never she became a kit beloved. Kit fell in love with her but his friend were मतलब कि against the match है। His father was a livery stable keeper. He had a license to practice a मतलब paramist but preferred to be a poet. He won one prize for translating the first book of a Virgil Aeneid. The poet is John Keats. Which romantic poet is epitaph? Read this grave contained all that was mortal of a young English poet who on his deathbed in the bitterness of his heart and the malicious power of his enemies dared these words to his egad on his tombstone. Here lies one whose name was right in water. यह जॉन कीट ने कहा। ओ sweety fancy let her lose summer joy are a spirit by spoiled by use. ये जॉन कीट ने कहा। द आर्थर ऑफ ए ओड टू नाइटिंगेल। ये जॉन कीट ने कहा। रॉबिन हुड इज सेलिब्रेटेड इन द पोएम लाइन्स ऑन द मर्बेंट ट्रेवेंस। यह लाइन जॉन कीट ने कंपोज्ड किया है। A work of a literature is a beautiful मतलब insofar is offer an accurate representation of it is a subject matter with fully realized character and a vivid description of event. This is one of the मतलब कि interpretation of a Keat. Beauty is a truth is a beauty which perceptive is shown here. यह लाइन जॉन कीट के लिए the mimetic no go not to lethe neither twist wolf bane tide rooted for it poisonous wine। यह लाइन जॉन कीट की पोएम ओड ऑन ए मेलंकली से ली गई है। ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर रंग बाई स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिबम्बेंस डियर्स। यह लाइन जॉन कीट की पोएम ओड टू सैकी से ली गई है। हाइपेरियन आफ्टर ए केयरफुली स्टडी ऑफ ए पैराडाइज लॉस्ट। यह लाइन जॉन कीट ने कहा था। लॉस्ट एज अ सॉफ्ट अमेज आई गेज। यह लाइन जॉन कीट के लिए ओड टू फैनी है। गिव मी वुमेन वाइन एंड स्नूप अंटिल आई क्राई आउट होल्ड इनफ। यह लाइन जॉन कीट ने कहा था और इस लाइन में अपीयर किया गया वुमेन वाइन एंड स्नूप से यह लाइन ली गई है। और यह लाइन जॉन कीट की पोएम वुमेन वाइन एंड स्नूप से ली गई। द यू ऑफ ए टी एजनस इज ए स्पेंसरियन स्टेंजा द फुल ऑफ ए हाइपेरियन। आर ड्रीम इज एन एपिक पोएम ऑफ ए कीट। द पोइट स्पीकर ड्रीम ऑफ ए मीटिंग विथ वन मिस figure who allow him to witness thou are revealed memories the fall of the titan. The muse figure is a counterpart of a manmois my from a hyperion. यह लाइन मोनेटिया है। स्विनबर्न कॉल परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। यह लाइन जॉन कीट की पोएम ओड टू ऑटोमन से ली गई। फॉरलॉर्न इज द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सेल्फ। इसमें फिल इन द सोल है। हु रिफर बैकस इन इज ए पोएम ओड टू नाइटिंगेल कीट्स। माउंट लटमस appear in Keats Endymion. The main cause of a Keat death was a consumptious. Keats dedicated one of his poems to Thomas Chatterton, which won a
Endymion, which poem of a Keats follow the concept of a Burton, the autonomy of a melancholy. Lamia Isabella is a poem taken from a story in a Boccaccio Dimension, who wrote in a Keats. Kid the eye of St. Agnes, so Madeline love for Forio. It is written in a Spencerian stanza. Keats takes the concept of one of his poem from Milton Paradise Lost. Identify the poem. Hyperion, a fragment. La Bella Damson's Mercy is a ballad by Keats. There is one French poem of the same title. It is a poem Country Love by Ellen Charter. This title of a St. come from the day and evening before the feast of a Saint Agnes. Saint Agnes is the patron saint of a Venus. He died a martyr in a 4th century Rome. The eve fall on 20 January को